Hey my dear lovely students, good morning to all of you. I welcome you all in today's video session. In the today's class we will be studying multiplication of algebraic expression. In the last few classes we were studying addition and subtraction of algebraic expression, but in today's class we will be starting on multiplication, as this is a very important topic from algebraic expression. So without wasting any more time, let's start our video. I would like to convey a simple message to all of you that please do watch the complete video. If you really want to understand what is being taught in the school, do remember to watch the complete video. अगर आप समझना चाहते हैं कि वाकई में क्या पढ़ाया जा रहा है तो आप वीडियो को पूरा देखें. अभी तक एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने वीडियो को पूरा देखा है. I have proper record of how many times and how many minutes my video is being watched and by whom. So it's all up to you. After all, it's your life. If you really want to see it, understand anything regarding your studies, do watch the video. Otherwise, please skip that video. Thank you. Let's start. Multiplication of algebraic expression. Multiplication of algebraic expression. What is most important in solving multiplication of algebraic expression is to understand the rules of how we solve the variable part and how we solve the constant part. It is a very easy, but to understand, let's first see one important property of exponents. That suppose if you have any variable a, suppose if you have any variable a and m and n are positive integers, and m and n are positive integers, then what we write? Then if we have to multiply a to the power m multiplied by a to the power n, that is both the terms are like. If a with the power m, that is integer m, is being multiplied with the same number, with the same base number a, but with a different power, that is n, what do we write? We write it as a to the power m plus. Let's first understand this. Suppose we have a is equal to 3, m is equal to 2 and n is equal to 1. So a to the power m into a to the power n. In place of a, what do we write? We write 3 to the power m. In place of m we write 2. Multiplied by a, in place of a we write 3. Power n, in place of m we write 1. What do we get? 3 square 9, and 3 square means 3 is being multiplied to itself 2 number of times. 3 square का मतलब क्या होता है कि 3 जो है वो खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है कितनी टाइम्स? 2 टाइम्स. So 3 into 3 what do we get? 9. 3 to the power 1 means that 3 is being multiplied to itself 1 number of times, है ना? तो 3 to 1 number of times, that will be 1. So what will be answer? 3. So 9 into 3 will be equal to 27. Okay. Now let's see the RSS part, that is a to the power m plus n. In place of a, what will we write? We will write 3. What in place of m, what do we write? 2. And in place of n, what do we write? 1. So what do we get? 3 to the power 2 plus 1, 3. And what is 3 cube? What is 3 cube? That is 3 is being multiplied 3 number of times. 3 into 3 into 3. What do we get? 9. 3 3 is a 9, and 9 into 3 will be equal to 27.
So 20. As you can see that both are same. So this is our BA27. So whenever we are given such terms where both the terms will be like and we are given different numbers of powers, what do? We simply add on the powers with the same base. This is the most important concept in solving algebraic expression. Now I would like to explain you better with examples. So let's start on with examples. First example. Suppose I ask you to multiply 2x multiplied by 2x. The first example is 2x multiplied by 2x. As you can see that both the terms are same. This 2 is constant, this 2 is constant, this x is variable and this x is variable. We have to multiply these two terms. So, how do we multiply? First we multiply the constant part, that is 2 into 2 will be equal to 4. Then variable part, x into x. What will be x into x? X square. This is your answer. How do I come to know that x into x, 2 into 2 is, for this is known by everyone. And how do we know that x into x will be equal to x square? X into x is equal to what? As I taught you just previously that a to the power m multiplied by a to the power n, what do we get? A to the power m plus n. चाहे पावर अलग अलग हो और अगर यहाँ पे भी पावर सेम हो जाए, m हो जाए, तो क्या हो जाएगा? m प्लस n. तो यहाँ पर x के ऊपर कुछ भी पावर नहीं है, मतलब कितना है? 1. यहाँ पे भी x के ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब कितना है? 1. तो क्या लिख देंगे? a पे पावर m मल्टीप्लाइड बाई a पे पावर m. तो a पे पावर m प्लस m, 1 प्लस 1 कितना होता है? सॉरी x, इसकी जगह a की जगह पर x है, तो x के पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? x स्क्वायर. और अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो कितना x है? 1 और 1 2, x स्क्वायर. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. 3x का होल क्यूब. क्यूब का मतलब कितनी बार? 3 टाइम्स. तो 3x मल्टीप्लाइड बाई 3x मल्टीप्लाइड बाई, सॉल्व कर सकते हैं. 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. कितना x है बच्चा? 1 2 आंसर. समझ में आ गया सबको? जिस बच्चे को ऐसे बनाना हो वो ऐसे बनाए. ये प्रूफ कर कर आपको नहीं दिखाना है, आपको ये काम मन में करना होता है. x ऊपर 1 1 और 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. ये सारे एक टर्म में थे, अब हम थोड़ा डिफरेंट 2 टर्म्स में आते हैं. घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है. क्वेश्चन मान लीजिए कि 4ab मल्टीप्लाइड बाई 2a, तब आप क्या करिएगा? सेम चीज, घबराना छोड़ दीजिए. 4 2 जा, सबसे पहला काम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है, वो तो हो गया. ठीक है. अब यहाँ भी a है और यहाँ भी a है. टोटल कितने a हैं? 2. तो a स्क्वायर. अब क्या बचा? b का तो कोई पेयर ही नहीं है. b तो किसी से मल्टीप्लाई ही नहीं होगा क्योंकि इसका तो पेयर ही नहीं है. मल्टीप्लाई तो हम लोग लाइक टर्म्स को करते हैं. a का मल्टीप्लाई a के साथ कर रहे हैं. a और b आपस में मल्टीप्लाइड में है, बट इट डज नॉट मेक एनी सेंस. एज इन मल्टीप्लिकेशन वी हैव टू multiply like terms. So a will be multiplied to a. When a is multiplied to a, what do we get? A square. And we do not have any pair, so you will write b as it is, and this will be our answer. I hope it is clear to everyone. Let's move on to some more question. Question number example 4. The research question. The question is 5 ab square c cube
मल्टीप्लाई 7a² BC। 5ab²। आप इसको ये नहीं समझ लीजिएगा कि ये a का स्क्वायर है, ये b² है मतलब b 2 बार है, ये c³ है मतलब c 3 बार है, a के ऊपर कोई पावर नहीं है मतलब a 1 टाइम। 7a² यानी कि a 2 बार, b और c। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, कांस्टेंट पार्ट 5 7 जा 35। यहाँ एक बार a है ना, एक इससे मल्टीप्लाई होता है, a² से टोटल कितने a, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, 2 + 1 कितने हो गए 3, तो a की पावर क्या 3। यहाँ पर b² है, यहाँ पर b है, यहाँ पर 2b और यहाँ पर 1b, टोटल कितने b 3b, तो b की पावर क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर 3c, c³ मतलब c3 और यहाँ पर 1c, टोटल कितने c हो गए 4c, तो c की पावर 4। इतना आसान है। आप अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आप खुद कह रहे होंगे कि वाह इतना आसान है, रियली इट इज दैट इजी। चलिए धीरे धीरे, मेरे क्लास में एज यू ऑल नो क्वेश्चन सबसे पहले आसान होते हैं और फिर हम लोग एट अ टाइम स्पीड पकड़ते हैं, है ना, वेरी फास्ट बुलेट ट्रेन। चलिए आते हैं एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही डिलीशियस क्वेश्चन है। कौन सा नंबर था बच्चा, 4 5। क्वेश्चन है -8/5 a² b और c³ मल्टीप्लाइड बाई -3/4 a b² c। अब हमको नहीं लगता है कि हमें समझाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी है। क्या करते हैं, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई, तो -8/5 मल्टीप्लाइड बाई -3/4। अब चाहे इसको ब्रैकेट में डाल दें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई साइन नहीं, प्लस माइनस ऐसा साइन लगाते थे बीच में, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं लगाना है। a² का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा बच्चा, a के साथ, इसको भी ब्रैकेट में डालिए। b किसके साथ मल्टीप्लाई होगा b², इसको भी ब्रैकेट में डाल देते हैं। c³ किसके साथ मल्टीप्लाई होगा c के साथ, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, -8/5 और -3/4, माइनस माइनस। अभी तक जो बच्चे यहाँ पर रुक जा रहे हैं कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, आई एम वेरी सॉरी टू से, आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे। अगर आप पढ़ाई करते तो आपको ये सारा चीज आना चाहिए। And for all those who know, those who are giving answers while watching video, I really appreciate them. 4 2 जा 8, और कुछ घटेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, 2 बार a और 1 बार कितनी बार a 3 टाइम्स, 2 बार और 1 बार टाइम्स 3 टाइम्स, 3 टाइम और 1 टाइम 3 टाइम्स 4। तीन हो गए आसान में तरीके बनाने का। अगर आप समझ जाएं तो मेरे तरीके से बनाएं, कैसे बनाएं, बस ये लिखते हैं -8/5 मल्टीप्लाइड बाई -3/4, बस एक लाइन में a² और a कितनी बार 3, 1b और 2b कितनी भी 3c और एक और c कितने c 4c, 4 2 जा 8, 6/5 a³ b³ c की पावर 4, बस दैट इज इट। अगर आप अच्छे से समझ जाएं और रेगुलरली प्रैक्टिस करें तो आप बिल्कुल मेरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन कंजर्व योर टाइम इन एग्जामिनेशन, आप अपनी टाइम एग्जामिनेशन अपना टाइम बचा सकते हैं, है ना। जब भी हम स्कूल में एग्जाम देते थे, है ना, तो हम स्कूल में मैथ्स में कभी इतने तेज नहीं थे, क्योंकि जो भी हमारे टीचर्स लोग थे वो, जैसे हम आपको कोशिश करते हैं पढ़ाने की कि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए। आप जितनी बार भी पूछें हम उतनी बार आपको बताएं, लेकिन आई एम सॉरी टू से मेरे ऐसे टीचर्स नहीं, उनका ध्यान जो था ना वो मेनली ब्रिलियंट बच्चों के ऊपर था। आई डोंट नो व्हाई। जो बच्चे फर्स्ट आते थे
या जो बहुत अच्छे बच्चे थे, है ना, तो अगर वो कोई भी डाउट पूछे तो उनको बताते थे। और ये कहते थे कि अगर ब्रिलियंट बच्चा ये कह दे सर बहुत आसान चैप्टर है, बना देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपके स्कूल का कोई बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, वो आकर बोले सर अजय इस तरह मत पढ़िए सर, हम लोग बना देंगे, ठीक है ना। तो सर जो है वो उसी बच्चे का बात मानते थे, मुझे कि हाँ बना लेना, चलो ठीक है। अब बताइए अगर हम भी ऐसा करें तो बाकी सारे सेक्शंस या आप ई सेक्शंस में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको गाइडेंस चाहिए, उनका क्या होगा। इसीलिए हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। और हम टाइम बचाने के लिए क्या करते थे, अपने स्कूल में क्वेश्चन मिलता था तो हम तो खुद से पढ़ते थे, हमेशा हम खुद से ही पढ़े हैं, कभी कोई ट्यूशन कुछ भी नहीं, नथिंग, है ना। तो हम खुद से ही मेहनत करते थे घर पर। आपको गाइडेंस जरूरी होता है, लेकिन मेरे घर में गाइडेंस मेरे पेरेंट्स करते थे। आपको एक टीचर की आवश्यकता हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो क्या करते थे कि एग्जाम में सारा जो भी क्वेश्चंस होता था ना, वो सबसे पीछे से पढ़ाना शुरू करते थे। वो सबसे पीछे टफ क्वेश्चंस होता था, उनको टफ क्वेश्चंस पढ़ाने में मजा आता था। सबसे पहले टफ क्वेश्चंस पढ़ा लेते थे और फिर सेक्शन सी, फिर बी, और फिर लास्ट में बनाकर 2 घंटा 1.5 घंटा में कॉपी सबमिट कर देते थे। सब एकदम आश्चर्यचकित थे, कैसे बना लिया है इतना सारा क्वेश्चन, है ना। क्लास में तो कुछ पूछता भी नहीं। बस जरूरी क्या है बच्चा कि आपको जो भी गाइडेंस दे रहा है आपके टीचर, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आप उसको ध्यान से सुनिए। वो गाइडेंस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, वो अपने लाइफ में आपसे बड़े हैं और आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस सीखे हैं, ज्यादा दुनिया देखे हैं, इसलिए आपको उनका ध्यान मानना जरूरी है। चलिए, मॉरल एजुकेशन बहुत हुआ आज के लिए, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी को समझ में आया होगा तो फाइनली कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 6 है मल्टीप्लाई। -8a b स्क्वायर c 3a स्क्वायर b एंड -1/6। तीनों को मल्टीप्लाई करना है, नो इश्यू, एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -8ab स्क्वायर c मल्टीप्लाइड बाई 3a स्क्वायर b एंड मल्टीप्लाइड बाई -1/6। क्या बताया था आपको, कांस्टेंट एक साथ, बिल्कुल घबराना नहीं है। -8 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई -1/6। बस अब अगर आपको ये मेथड सही लगे तब उस मेथड को फॉलो करिए, बारी बारी से उसमें गलती नहीं होगा आपसे। तब आप पूरी तरीके से समझ जाए तब मेरे मेथड को फॉलो करें। ए किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, ए का ए से, तो ए का पेयर क्या है, ए स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर और उसमें कोई अंतर नहीं, बस आपको अल्फाबेट्स ढूंढने हैं। बी स्क्वायर इसका पेयर क्या है, सिर्फ बी ब्रैकेट। सी का तो कोई पेयर ही नहीं है ना बच्चा, बिल्कुल भी नहीं, तो बस सी का इसीलिए छोड़ दीजिए। 3 2 जा 6 एंड 2 4 जा 8, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 4। 2 बार ए और एक और बार ए, कितनी बार ए, 3 टाइम्स, तो ए 3। 2 बार बी और एक और बार बी, 3 बार बी, तो बी टू द पावर 3 और दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन वेरिफिकेशन, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है वेरिफिकेशन वाला, मल्टीप्लाई -4/3 xy³ by 6/7 x square y and verify your result. -4/3 xy³ by 6/7 x square y and verify your result. For x is equal to 2 and y is equal to 1। ये क्वेश्चन आपको मल्टीप्लाई करना है, -4/3 xy³ by 6/7 x square y।
एंड वेरीफाई योर रिजल्ट फॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। आपको इस चीज को सॉल्व करना है और वेरीफाई करना। सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से देखो, क्वेश्चन है मल्टीप्लाई -4/3 xy क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 6/7 x स्क्वायर y। इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। तो -4/3 इंटू 6/7 ब्रैकेट क्लोज्ड। x का मल्टीप्लाई किसके साथ, x के साथ, x इंटू एक्स स्क्वायर। y का मल्टीप्लाई किसके साथ, y के साथ, क्या हो जाएगा, y क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, -8/7। एक्स स्क्वायर और x कितनी बार x, 3 टाइम्स, तो x क्यूब। y क्यूब इंटू y क्या हो जाएगा, y टू द पावर। समझ में आ गया सबको। तो क्या समझने की बात है बच्चा कि ये तो क्वेश्चन था, LHS कह सकते हैं इसको। इसको सॉल्व करने के बाद हमको RHS में क्या मिला, -8/7 x क्यूब y। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, -4/3 xy क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 6/7 x स्क्वायर y इज इक्वल टू, मेरा आंसर क्या आया था, -8/7 x क्यूब y टू द पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये पार्ट मेरा क्या है, LHS पार्ट, और ये पार्ट क्या है, RHS पार्ट। ठीक है ना। तो हम लोग को जब भी वेरीफाई करना होता है तो वेरीफाई में हम लोग क्या करते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS। तो सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं। LHS में भी बारी बारी से सॉल्व करते हैं, इस टर्म को अलग और इस टर्म को अलग। चलिए यहाँ पर LHS लिखते हैं। सबसे पहला क्या है बच्चा, -4/3 xy क्यूब। तो क्या हो जाएगा, -4/3। x की वैल्यू क्या था, x इज इक्वल टू 2 था और y इज इक्वल टू 1। तो x की जगह पर क्या लिख दें, 2 इंटू y की जगह पर क्या लिख दें, 1 टू द पावर 3। क्या हो जाएगा ये, -4/3 इंटू 2। 1 को मल्टीप्लाई किया गया 1 से, लेकिन कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, 3 टाइम्स। तो कोई चीज नहीं होगा, 1 आंसर। क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, -8/3। अब LHS में ही कौन सा सॉल्व करते हैं, सेकेंड वाला, 6/7 x स्क्वायर y। तो 6/7 x की जगह पर कितना बचा, 2। x की वैल्यू कितना है, 2। x की जगह पर क्या लिख देंगे, 2। लेकिन 2 का क्या है, स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई y। y की जगह पर कितना, 1। क्या हो जाएगा, 6/7। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 2 बार, यानी कि 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 और 1 की जगह पर 1। तो 6 4 जा 24/7। ठीक है। आई होप किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब टोटल LHS कितना आएगा, LHS में 2 टर्म थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करने का कितना आया, -8/3 लिख सकते हैं। -8/3 मल्टीप्लाइड बाई, इसको सॉल्व करने का कितना आया, 24/7। 3 से कट जाएगा 8 टाइम्स में, तो क्या बचेगा बच्चा, 8 8 जा 64, -64/7। इसको 1 कर देते हैं। ठीक है। LHS में इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया था 8/3। आप चाहे तो इसको बॉक्स में भी डाल सकते हैं ताकि आपको याद रहे। और इसको सॉल्व करने पे कितना हमारा आंसर आया था, 24/7। तो टोटल LHS कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इसका वैल्यू -8/3 और इसका वैल्यू 24/7। कट करने पे कितना जाएगा, -64/7। मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब आते हैं RHS में। RHS में मेरे पास क्या है बच्चा, -8/7 x क्यूब y4, x क्यूब y4। इसको सॉल्व करते हैं RHS में, -8/7 x की जगह पर कितना, 2। तो 2 का क्या लिख देंगे, क्यूब 3 टाइम्स और y की जगह पर क्या, 1 कितनी टाइम्स, 4 टाइम्स। तो सॉल्व हो जाएगा, -8/7। 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8 मल्टीप्लाइड बाई 1। क्या हो जाएगा, 8 8 जा 64, -64/7।
इसको सेकंड इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट इक्वेशन भी -64/7 और सेकंड इक्वेशन में -64/7। सो बोथ द इक्वेशंस आर सेम। सो व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, LHS is equal to RHS। क्या लिख देते हैं? वेरी फाइन। आई होप दिस वीडियो इज वेरी क्लियर टू यू। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो, काइंडली कमेंट मी, आई विल मेक वन मोर वीडियो फॉर यू ऑल लवली स्टूडेंट्स। सो डू रिमेंबर टू वॉच द वीडियो ओनली इफ यू आर इंटरेस्टेड। अगर आप इंटरेस्टेड, क्योंकि आज तक मैंने जब भी वीडियो अपलोड किया किसी बच्चे ने पूरा वीडियो नहीं देखा है। आई हैव प्रॉपर डिटेल्स ऑफ एवरी वन, हर एक वीडियो कितनी देर कोई देखता है। It depends on you. I'm not saying to watch it completely, but if you want to study since study, do watch it. It's available for free. Stay tuned for next updates. Till then, thank you all. Stay home, stay safe.